conics. Now I already studied this general definition of conics. So conic is nothing but it is locus of the point P, ठीक है, whose distance from a fixed point SP to a fixed line PM is always, ratio of this SP and PM is always constant, and that ratio is known as eccentricity. So in this case that ratio is known as eccentricity. So we know that SP upon PM is equal to E. So then it is a conic section. ठीक है. अब let us say this S focus is alpha comma beta. The given point or general point P is x1 y1, and this fixed line which is called as directrix having equation ax plus by plus c equal to 0. So what is the general equation of a conics? So here we know that SP is equal to what? E into PM. Cross multiply हो जाएगा. So SP is equal to E into PM. Squaring both the sides, we get SP square equal to E square into PM square. Now SP square is nothing but distance between 2 points. SP square, distance between 2 points. Okay, so it is nothing but x1 minus alpha bracket square plus y1 minus beta bracket square by using distance formula is equal to E square as it is in the bracket PM square. Now PM square is nothing but distance of a point from a line. M is a line. ठीक है, M is point on the line. So PM is nothing but perpendicular distance of a point P from the line D, whose equation is ax plus by plus c. And perpendicular distance formula क्या होता है? It is nothing but mod of. तो हमने square लिया है तो mod निकल जाएगा. A into x1, B into y1 plus c. यहाँ पर आ गया. And divided by under root a square plus b square. And whole bracket square, क्योंकि PM square है. So this is the formula for PM. Solving this, if we simplify this, then we get a general equation of second degree. Like that we have studied in pair of straight lines. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is the general equation of second degree. So conics का जब आप general equation लेंगे तो obviously it will be a second degree homogeneous equation. होमोजेनियस नहीं बोलेंगे, इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ओनली. ठीक है, क्योंकि सी है यहाँ पर, ये होमोजेनियस नहीं है, बट इट इज अ जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री. नाउ इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज फाइंड आउट यूजिंग डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट कैसे ध्यान में रखना है मैंने बताया था. डिटर्मिनेंट में डायगोनल पर ए बी सी, अपर साइड एच जी एफ, लोअर साइड एच जी एफ. ठीक, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, which is nothing but डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर. ठीक, तो एक बार अगर आपने डेल्टा की वैल्यू इस किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए, किसी भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन के लिए, if we have find out value of delta, then depending upon this value of delta, we are having two different cases, case first and case second. Case first, when delta is equal to 0. We have already studied in pair of straight lines. अगर ये delta 0 होता है, then this equation represents a pair of straight lines. हमने स्टडी किया है. बट उसमें और आगे फर्दर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे? देखिए, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है, डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में है? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंडीशंस. तीन कंडीशन जो है मेरे, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 होगा, सो इट इज पेयर ऑफ कोइंसिडेंट और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. सेकंड, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस. ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट. ठीक है, एंड फोर्थ केस में a प्लस बी अगर 0 होगा, देन इट इज पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस. a प्लस बी अगर 0 होगा तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस. सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री. ये एक फार्मूला है, हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में.
एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वहां पर tan थीटा इक्वल टू समथिंग और वहां पर डिनोमिनेटर a प्लस बी है, तो a प्लस बी अगर जीरो होगा तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिए, डेल्टा इक्वल टू जीरो में 4 केसेस है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो में 5 केसेस है। Why we are discussing, it is very much important। जेडब्ल्यू में या फिर आप सीईटी में बोल सकते हैं, इवन इन सीईटी, जेडब्ल्यू सीईटी दोनों में ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये कभी भी हमें आ सकता है, मतलब इसके चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। दे गिव यू जस्ट अ जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री एंड देयर आर 4 ऑप्शंस कि पैराबोला है, इलिप्स है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर मान लीजिए कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। चार ऑप्शन होंगे मेरे पास। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन दिया होगा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए बी सी या जी एफ। आपने ऐसे वैल्यू निकाले, फिर डेल्टा की वैल्यू निकाली, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो हम इधर है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम इधर है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद फिर आपको सेकंड कंडीशन चेक करना है, ठीक है। अब ये तो जो था, so when delta is equal to zero, it is nothing but the pair of straight lines। मोटा मोटा एक ध्यान में रखने के लिए, और बाइफर्केशन डिफरेंट कंडीशन से आपको मिलेगा। और डेल्टा नॉट इक्वल टू अगर जीरो होगा देन इट इज अ कोनिक्स, ठीक। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब कोनिक्स है। फिर उसके फर्दर कंडीशन क्या है, देखिए एच इक्वल टू जीरो होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ई इक्वल टू जीरो होगा, देन इट इज अ सर्कल। देखिए हमने जब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला स्टडी किया तो ई लेस देन वन, ई ग्रेटर देन वन, ई इक्वल टू वन, ये 3 केसेस स्टडी किए। बट ई इक्वल टू जीरो क्या होगा, इट विल बी अ सर्कल। ए इक्वल टू बी होना चाहिए, एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू सेम होगी, ये कंडीशन। एच की वैल्यू जीरो होगी, मतलब एक्स वाई की टर्म नहीं होगी, देन इट बिकम्स अ सर्कल। सेकंड केस, ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर जीरो होगा, ई इक्वल टू वन होगा, देन इट इज अ पैराबोला। ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, ई लेस देन वन होगा, तो इलिप्स हो जाएगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो but e greater than 1, then it becomes a hyperbola. All this we have studied, these are definitions of different ellipse. Equal to 1 parabola, less than 1 ellipse, greater than 1 hyperbola. For what? Eccentricity, ठीक है, eccentricity निकालने के बाद एक हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिस्कस किया था जिसमें ए बी माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, और इसेंट्रिसिटी होगा √2 मतलब ग्रेटर देन 1। So it is a particular case of hyperbola that is called as a rectangular hyperbola. So this is something general points about the conics. अब हम एक एक कोनिक डिस्कस करेंगे। हमें करना है पैराबोला, फिर सर्कल ऑलरेडी हो चुका है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो चुका है। देखिए यही सारी चीजें हम पढ़ चुके पहले, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम पढ़ चुके, सर्कल हो चुका। अब हम है पैराबोला पर, बाद में पढ़ेंगे इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद पैराबोला। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax whose vertex is at origin and axis is पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। एक लेफ्ट हैंडेड होता है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। अपवर्ड होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by, डाउनवर्ड होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4by। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पैराबोला हमने देखे हैं। अब जो नई चीजें आ रही, अब इसके जो भी फार्मूले है, फोसाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारे फार्मूले। डायग्राम से ध्यान में रखना इज क्वाइट इजी, आप लर्न तो करेंगे बट फिर भी डायग्राम से ध्यान में रखना इजी होता है। तो आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इनको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग करिए। पूरे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर लर्न कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ सिमेट्री आती है तो सिमेट्री समझिए कि सिमेट्री कैसे आ रही है, ठीक है। सिमेट्री कैसे आ रही है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो कुछ सिमेट्री होगी, उस हिसाब से आपके फार्मूले चेंज होंगे। जैसे इन दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पर x है, इधर -x है, तो फार्मूले इनके सब सेम होंगे।
बट इधर जहां जहां पर एक्स आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव रहेगा। ओके अब जो नई चीजें है वो हम डिस्कस करते हैं। हमें मालूम है इस पैराबोला में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 4a, ठीक है, दिस मच इज 2a, दिस मच इज 2a, सो l dash is what? It is a latus rectum, ठीक है, this is a latus rectum. So latus rectum is nothing but it is a cord or it is a focal cord passing through the focus. और focal cord मतलब perpendicular to the axis, ठीक। तो ये जो लाइन है l dash, इसका लेंथ होता है 4a, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब एक नया कंसेप्ट है सेमी लैटस रेक्टम, ठीक है, सेमी लैटस रेक्टम। सेमी लैटस रेक्टम मतलब खाली ऊपर वाला लेंथ, यस यल, एंड इट इज नथिंग बट 2a, सो दैट इज सेमी लैटस रेक्टम। नेक्स्ट थिंग, टू पैराबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लैटस रेक्टम। अगर किसी भी दो पैराबोला का लैटस रेक्टम सेम होगा, इसका मतलब पैराबोला सेम, मतलब एक ही पैराबोला होगा वो, अगर लैटस रेक्टम आपका सेम होगा तो। सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू लैटस रेक्टम। मतलब कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ये फोकस हो गया, ऑन डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, इतना डिस्टेंस हो जाएगा, हाफ ऑफ द लैटस रेक्टम। हाफ ऑफ लैटस रेक्टम मतलब 4a का हाफ मतलब कि 2a, दैट इज नथिंग बट ये सर। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है, दिस मच डिस्टेंस एंड दिस मच, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लैटस रेक्टम। नाउ देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार मैंने यहाँ पर रिपीट किया, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट इज क्वाड ऑफ पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट इज क्वाड ऑफ पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो क्वाड क्या होता है उसको समझिए पहले, व्हाट इज द क्वाड। ये जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है, इसमें देयर में भी डिफरेंट क्वाड्स, दिस इज वन क्वाड, अनदर क्वाड, ऐसे एक क्वाड, ऐसे एक क्वाड, सो बहुत सारे क्वाड्स हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट क्वाड्स, ठीक है। बट डबल ऑर्डिनेट इज अ क्वाड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो डबल ऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे फिर? जैसे कि आपका लैटस रेक्टम है, या फिर ये वाली, दिस इज आल्सो डबल ऑर्डिनेट, क्वाड है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। दिस इज अनदर डबल ऑर्डिनेट, this one is another double ordinate which is a quad, ठीक है, perpendicular to the axis, ये हो गया डबल ऑर्डिनेट। एंड लैटस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट passing through the focus. So all these parallel lines which are parallel to y axis, in this case ये y axis हुआ, all the parallel quads, so these are what? These are double ordinate। और इन डबल ऑर्डिनेट में एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है which is this one, that is called as latus rectum. So latus rectum is nothing but double ordinate passing through the focus, ठीक। अब यही latus rectum आपका फोकल कॉर्ड भी कहलाता है, फोकल कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, सिंपल। फोकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। अब फोकस से पास होने वाली भी बहुत सारे कॉर्ड हो सकती है, देखिए अगर मैं अलग तरीके से दिखाऊं तो ये वाला एक कॉर्ड वो फोकस से पास होगा, ये भी फोकस से पास होगा, बट फोकस से पास होने वाली और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देन इट बिकम्स अ लैटस रेक्टम, ठीक। सो लैटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, लैटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। फोकस से पास होने वाली सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी? लैटस रेक्टम। क्योंकि देखिए ये वाला फोकस है, अभी हम कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक। सो देयर आर डिफरेंट कॉर्ड्स पासिंग थ्रू द फोकस। ये वाले एक फोकल कॉर्ड हुई, दिस फोकल कॉर्ड इज ग्रेटर देन लैटस रेक्टम। आप जितनी भी फोकल कॉर्ड निकालेंगे, ये वाली एक फोकल कॉर्ड हुई, ऑल द फोकल कॉर्ड्स आर ग्रेटर देन लैटस रेक्टम, मतलब लैटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। सो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट,
अब एक जनरल पॉइंट हमने सर्कल के केस में भी डिस्कस किया था इसे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कोनिक्स, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो। अगर हमें पॉइंट का पोजीशन डिसाइड करना है, अब पॉइंट का पोजीशन मतलब कि भाई ये पैराबोला है मान लीजिए, तो पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है या फिर पैराबोला के ऊपर है, 3 केसेस बन जाते हैं। सर्कल में भी हमने पढ़ा है, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक, तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से चेक करते हैं वेदर द गिवन पॉइंट इज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला। सो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। सो लेट द पॉइंट बी P x1 y1। ठीक है, ये वाला मान लीजिए पॉइंट है। पैराबोला आपको मालूम है y square equal to 4ax is a parabola. From this we can say that y square minus 4ax equal to 0. 4x अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है पॉइंट P x1 y1. So we will find out S1. Now S1 is nothing but y1 square minus 4ax1। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने y को रिप्लेस कर दिया y1 से, x को रिप्लेस कर दिया x1 से, तो S1 क्या हो गया फिर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब हम चेक करेंगे कि S1 लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल टू 0 हुआ मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। तो अगर इक्वल टू 0 हुआ कि इसका मतलब हुआ ऑन द पैराबोला। ठीक है, इफ S1 इज इक्वल टू 0 देन दिस पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। लेस देन 0 हुआ तो इनसाइड द पैराबोला, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो आउटसाइड द पैराबोला। So that is the simplest technique used to check the position of any point. 1 2 3 4 किसी भी केस में आप चेक कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक। आपको यहाँ से जो भी कर्व है उस कर्व को इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, x को रिप्लेस करिए x1 से, y को रिप्लेस करिए y1 से, सो दैट यू विल गेट S1 लेस देन 0 तो इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द कोनिक्स, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड। ठीक, नेक्स्ट, नाउ स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराबोला यहाँ पर जो हमने पढ़ा, इट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड मतलब whose vertex is at origin and axis is positive x axis। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला। और स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराबोला, इन दिस ओरिजिन इज शिफ्टेड टू HK। ठीक है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू HK, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल। याद करिए लोकस के जो प्रॉब्लम्स थे, ओरिजिन इज शिफ्टेड, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल। ये जो एक्सेस है यहाँ पर, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओरिजिन बस हमारा यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, दैट इज HK पे, देन वी गेट ए डिफरेंट पैराबोला। ये भी पैराबोला हुआ। अब इस पैराबोला का इक्वेशन आपको कैसे मिलेगा, तो एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुआ, ओरिजिन शिफ्ट हुआ, तो आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के फार्मूले यूज करेंगे। इट मीन्स जो आपका पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, विल रिप्लेस दिस y by y minus k and will replace this x by x minus h। तो हम x को रिप्लेस करते x minus h से, y को रिप्लेस करते y minus k से। क्यों, बिकॉज ओरिजिन इज शिफ्टेड। ठीक है, ओरिजिन जैसे शिफ्ट हो गया, वी गॉट दिस न्यू पैराबोला y minus k ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x minus h। क्लियर है। अब इस पैराबोला के लिए जितने भी आपके फार्मूले हैं स्टैंडर्ड के, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला के जितने फार्मूले, फोकस कहाँ पर है या फिर आपका वर्टेक्स कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है। जैसे वर्टेक्स की बात करें तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0 0। ठीक है, तो 0 0 में क्या हो जाएगा, प्लस H प्लस K हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर हो गया, 0 प्लस H मतलब H, 0 प्लस K मतलब K। तो H कॉमा K इज द वर्टेक्स। अकॉर्डिंगली फोकस आपका चेंज हो जाएगा। तो सारे कोऑर्डिनेट्स या फिर सारे फार्मूले यूजिंग द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से आप नए फार्मूले बन जाएंगे उसके लिए। सो दिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराबोला वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू सर्टेन डिफरेंट पॉइंट
एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, ये ध्यान में रखना है। अब नो, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला जैसे ये एक्स एक्सिस का पैराबोला कौन सा है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब इसमें y का स्क्वायर होता है और x लीनियर फॉर्म में होता है, मतलब x की लीनियर पावर होती है। ध्यान में रखें हमेशा, पैराबोला कौन सा होगा, x और y दो चीजें है हमारे पास, दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, दोनों में से किसी एक की पावर स्क्वायर होनी चाहिए, देन इट इज अ पैराबोला। दोनों अगर स्क्वायर होंगे तो इन दैट केस इट मे बी अ सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। बट अगर y और x दोनों में से किसी एक की पावर, समझिए अच्छे से, किसी एक की पावर अगर 2 होगी और दूसरे की पावर 1 होगी, देन इट इज अ पैराबोला। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की पावर 2 है, x की 1 है, इधर y की 2 x की 1, इधर भी सेम है, y की पावर 2 x की 1, इधर x की पावर 2 y की पावर 1, x की पावर 2 y की पावर 1, ठीक। तो इन दिस केस इट बिकम्स अ पैराबोला। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस dy प्लस c। y की पावर 2 होगी, y की पावर 1 भी हो सकती है जनरल में, यहाँ पर तो जनरल नहीं है, ये स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है, प्लस c, देन दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब कि इस फॉर्म में x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो इसमें x की पावर 2 हो जाएगी, y विल रिमेन लीनियर, मतलब y की पावर 1 होगी। सो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो दो जनरल इक्वेशन आपके पैराबोला है। अब बात करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। सो व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए उसके ऊपर। देखिए, जब आप कार्टेशियन में से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो देयर विल बी 2 वेरिएबल। कौन से, मान लीजिए एक पॉइंट में बात करता हूँ, जनरल पॉइंट P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1। ये पॉइंट हमें ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट 2 वेरिएबल्स x1 एंड y1। पैरामीट्रिक में देयर इज ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है, पैरामीट्रिक में ओनली देयर इज 1 वेरिएबल। सो x is a function of t, y is also a function of t। तो हम t को ढूंढ लेते हैं, हमें x और y ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है, हम t को ढूंढ लेते हैं, हमें सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की खासियत क्या है, सो हियर वी नीड ओनली 1 वेरिएबल एंड दैट इज t, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा आप कंसेप्ट समझिए, मान लीजिए बीइंग अ टीचर आई हैव टू सर्च फॉर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे 2 स्टूडेंट ढूंढने हैं कि ये 2 लोग किधर चले गए, तो मुझे दोनों को इंडिविजुअली ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है दिस 2 आर कनेक्टेड टू 1 स्टूडेंट, मतलब अगर ये तीसरा, ये तीनों एक साथ ही गायब होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से जो थर्ड है दैट इज t, उसे एक बार ढूंढ लेता हूं और उसे बोलता हूं कि ला भाई इन दोनों को पकड़ के ला, x और y को। सो इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड आउट 1 इन प्लेस ऑफ 2, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो इट्स बिकम टेडियस टू फाइंड आउट 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल में सॉल्व करना हमेशा आपके लिए इजी रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला में मैंने चारों के लिखे यहाँ पर। देखिए, हमने बोर्ड में जब पढ़ा तब हमने खाली इसका डिस्कशन किया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए या फिर आपने मुझे डाउट्स में भेजे, सो ऑल दीज वर रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पर कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर होता है, y इक्वल टू 280 होता है। अब अगर पैराबोला इस फॉर्म में चला जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax में, तो जैसे मैंने बताया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, x इज रिप्लेस बाय -x, वाई स्क्वायर एज इट इज है। 4a
एज इट इज है। तो x की जगह पर कौन आ गया, माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, मतलब कि x इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर x निगेटिव हो जाएगा इस वाले केस में। y रिमेन सेम, y इज इक्वल टू 280। ठीक है, सेकंडली अब ये दो केस हुए। अब हम अगर बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। सो इन दिस केस ये वाले इसके साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इस थर्ड को, तो x एंड y आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। वाई स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर, 4a 4b, चलिए वो तो कांस्टेंट है, उससे हम ज्यादा मतलब नहीं है। x की जगह पर हो गया y, मतलब क्या हुआ, x एंड y आर इंटरचेंज, इसलिए इधर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है। इधर y इज इक्वल टू 280 है, तो इधर x इज इक्वल टू 280 है। x एंड y आर इंटरचेंज विद ईच अदर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से आपको x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by मिल सकता है। इसमें y हैज टू बी रिप्लेस बाय माइनस y, मतलब x अगर 280 इधर है तो इधर भी x 280 रहेगा, और इधर y अगर 80 स्क्वायर है तो इधर y हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमने a लिया है, चलिए आप b लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर हमने b लिया है, तो आप b लिख लीजिए, इधर भी होगा कांस्टेंट, है ना। 4ay अगर हम लिखते हैं तो फिर a होता था, यहाँ पर हमने 4by लिया है तो यहाँ पर b आएगा। सो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, अगर हम इस जनरल पैराबोला के, दिस इज जनरल पैराबोला, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज जनरल, जैसे हमने सर्कल में देखा था, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर ओरिजिन पर, और जनरल सर्कल मतलब सेंटर ओरिजिन के बाहर किधर भी। ठीक है, ये दोनों के इसी तरीके से स्टैंडर्ड पैराबोला, सेंटर नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे वर्टेक्स ओरिजिन पर। इस केस में वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, देन इट इज अ जनरल पैराबोला। अच्छा, अभी ये जो पैराबोला है, इसमें अगर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ढूंढे, तो इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए क्या करना होगा हमें, वी हैव टू यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फार्मूले। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, 80 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू EH प्लस 80 स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू 280, तो इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू k प्लस 280। बिकॉज व्हाट, हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में किस तरीके से करते हैं, वी हैव टू रिप्लेस x बाय x माइनस h, y बाय y माइनस k। तो यहाँ पर x है, इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा x माइनस h से, इसको x को मैंने रिप्लेस किया x माइनस h से, इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस h उधर जाएगा, प्लस h हो जाएगा। सिमिलरली y को हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस k से, ठीक है, तो माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। सो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए जनरल पैराबोला। अब ये जो जनरल पैराबोला हमने लिया है, इट इज ओनली फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, इसके लिए। ऐसे जनरल पैराबोला इनके भी हो सकते हैं, इन तीनों के जनरल पैराबोला हो सकते हैं। ओके, सो टिल दिस वी हैव स्टडीड समथिंग। 11 बज रहे हैं। तो बाकी जो पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए आप होमवर्क करिए। फॉर टुडे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8.4.1 एंड 8.4.2। So इसमें अगेन देयर में बी अराउंड 70 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चंस।
तो हमने तो 40 का टारगेट रखा है डेली, तो हम आधे आधे ही करेंगे। जो ऑड क्वेश्चंस है गर्ल्स विल परफॉर्म ऑड और बॉयज को करने हैं इवन क्वेश्चंस। ठीक है, सो देयर विल बी अराउंड 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चंस क्या अराउंड 40 के लेस ही होगा। 8.4.1 8.4.2 आप इसे अपना एक रफ नोटबुक बनाइए, उसमें सॉल्व करते जाइए, आंसर चेक करते जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप मुझे उसका इमेज भेजिएगा, है ना, इमेज भेजना है आपको, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स है वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। ठीक, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या?